Sunny is here. So I think we can start. Just a second. Hi, Sunny. Shall we start? Yes. Okay. Please tell me if my screen is visible. Yes, visible. Okay. Thank you. So this is just a summary of week 9 to 12. I'll tell you what is written. So, yes. First of all, I have defined binomial method of showing this representation, binomial variable. In this, we write it as x approximation b. I'll not write it. Yeah, b n comma p. N is the total size and probability is the total probability which is given in the question. Then hypergeometric means that if you want to select something, like you have a bag and you want only red balls. So this is the type of problem you have to solve. Like it looks like this. N, bigger N here is the total size. Like if there are 20 boys and 10 girls, then bigger N is 30. Smaller m, if I want probability of girls, then smaller m would be 10 and smaller n would be number of girls I want. So for example, I want to select two girls. Um, I want to select two students from a class of 20 boys and 10 girls, 20 boys and 10 girls, which is 30 as total. So this is n. Let's scroll up. Yes. So 20 boys and 10 girls, which is 30. Yes. Then I'm asking, out of those two selected students, what is the probability of getting girls? Both girls. So my bigger n would be 30, small m would be number of girls, which is 10, and smaller n would be 2 because this is the size of sample size. Got it? This is when we use hypergeometric case. Sample size, or we can say the number we selected, I guess. Yes, selected number you can say. So smaller n means the selection number, what we select. Then we talk about Poisson, po- uh, Poisson representation. In this, we talk about selection in a fixed time. If I show you some examples, see, like this. If they ask number of persons arriving per hour, or let's see an easier question. Yes, number of items sold in an hour. So this is a time interval given. That's why we use Poisson distribution, and it lambda is given. So this lambda, it has to be multiplied by the time given. So 4 hours, that's why I multiply lambda, given lambda, into 4, which makes 8. And then you might be knowing the formula for Poisson probability, e to the power minus lambda into lambda to the power x. X means the number of selections. Like here, we need 3 items to be sold exactly. So x is 3 upon x factorial. Okay, I hope you know this formula, right? Yeah, I know. Okay, great. But the So, last part is that really very important. Like questions come from that part. which part? The exponential.
Yeah, even distribution. I found problem in that, but in PYQs I didn't find any questions. I found questions from Poisson, hypergeometric, and binomial from week 9 to They are 12. Yes, better but actually. yeah, true. But I would say just learn the formulas once or just read them once, week 12 वाला भी, so that अगर question आ भी जाए then you know how to solve it. वरना PYQs में मैंने देखा नहीं कोई क्वेश्चन उसका. Okay, so I think we can move forward now. Here's the first question. It says probability of a man hitting a target is 1 by 4. So here we have to use binomial x, b and p because हमें n भी दिया है, n is 5 and p भी दिया है, p is 1 by 4. Okay, so find the probability that he will hit the target at least twice. So you have to find p x greater than equal to 2. If you know the method, I can skip it or I can show you I mean, the solution. Huh? Just so the like once this show the solution. Okay, okay. So I'll just tell you p x greater than equal to 2. ये तो समझ आ गया ना, at least twice लिखा है इसलिए at Yeah, yeah. least. हाँ, तो यहाँ So पे equal to and greater. yes p of 2 लेना होगा. एनी गेसेस कि कहाँ तक जाना होगा हमें p of 4 एंड मैक्सिमम 5 है, तो p of 5 तक हम मैक्सिमम जाएंगे. अब मैंने यहाँ पे ये फाइंड आउट भी करे हैं. ये देखो, ये वाला फॉर्मूला याद है ना? हेलो. हाँ, आई गॉट डिस्कनेक्टेड, आई डोंट नो क्या हुआ. इज माई स्क्रीन विजिबल? Yes. ओके ओके. हाँ, सो ऐसे निकालते हैं, लाइक ये फॉर्मूला है इसका, एन सी आई p to the power of n minus I, p to the power of I into 1 minus p to the power of n minus I. ये है बाइनोमियल का फॉर्मूला, p of x फॉर बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल. ये भी पता है सबको? पता है ना? Yes. Yes, yes. Okay, and I'll try to make a formula sheet right now and share it with you. तो यही फॉर्मूला मैंने यूज करके p of 2, 3, 4 एंड 5 निकाला, जो कि ऐसे ही फॉर्मूला यूज करके आया. एन आई टोल्ड यू 5 है हमारे पास. ये सारे आए और इन सब का सम लेके हमारा फाइनल आंसर आएगा, जो कि है 0.367. अगर ऐसे फ्रैक्शन में आंसर है तो फिर सबको एक बार डिवाइड करके देख लो कौन सा मैच करता है, एंड देन यू विल बी डन. ठीक है, क्लियर हुआ? एनी डाउट्स? No. ओके. So now this one question was from week 12, वो भी normal distribution, and ये बस theoretical ही है. तो अगर हमने week 12 पढ़ा है तो फिर तो पता ही होगा कि इसमें ये दोनों ऑप्शंस करेक्ट हैं. z की वैल्यू x माइनस, हाँ,
x माइनस म्यू अपॉन ये होती है सैलरी, एंड p ऑफ x लेस देन इक्वल टू दिस। ये तो मतलब नॉर्मल फैक्ट है कि अगर किसी भी नंबर से लेस देन इक्वल टू का प्रोबेबिलिटी हम ले रहे हैं, और अगर वो इक्वल टू है उससे ज्यादा वाले की, तो फिर ये जरूर 0.5 ही होंगी दोनों। मतलब कि मेरे पास एक नंबर है, उससे नीचे वाली मैं सारी ले रही हूँ, और वो उसके ऊपर वाली भी सारी, वो दोनों इक्वल ही होंगी, है ना। तो ये 0.5 होती है दोनों, एंड इनका ऐड करके 1 होता है। सो दिस इज एज अ फैक्ट, एंड ये है फॉर्मूला। ठीक है। यहाँ पे फॉर्मूला इनकरेक्ट है क्योंकि यहाँ पे नीचे स्क्वायर लिया हुआ है वेरिएंस। चूज द करेक्ट ऑप्शंस। हाँ, देखो, एक्स बर्नौली पी इज इक्वल टू ई एक्स पी। ठीक है। अगर हम यहाँ पे एन नहीं ले रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये एन की वैल्यू जरूर 1 रही होगी, इसलिए हमने एन को यहाँ पे नहीं लिया। ई एक्स की वैल्यू फिर पी ही होगी, वरना अगर हम ऐसे इस फॉर्म में लेते हैं, नॉर्मल फॉर्म जो है एक्स कोरेस्पॉन्ड्स टू बी एन कॉमा पी लेते हैं अगर, जैसे नॉर्मली लिया जाता है, तो वहां पे ई ऑफ एक्स इज एन इंटू पी। यहाँ पे हमने एन नहीं लिया है, तो ये सिर्फ पी होगा, ये करेक्ट है। एंड सेकेंड क्वेश्चन, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स। तो ये नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स काउंटेबल है कि किसी ने 2 अटेम्प्ट्स में क्लियर किया, किसी ने 1 अटेम्प्ट में क्लियर किया, तो इसलिए डिस्क्रीट वेरिएबल है। अगर ये एक इंटरवल होता या फिर ये कुछ यूनिट वाला होता, तो ये होता कंटिन्यूअस वेरिएबल। देन फोर्थ क्वेश्चन, इंटरवल स्केल। ये तो वीक 1 का ही है, वीक आई मीन 1 to 4 का ही है। तो डिफरेंस बिटवीन वैल्यूज कैन बी इवेल्युएटेड, यस, सम और डिफरेंस हो सकता है इसमें, बट ये जो है प्रोडक्ट और कोशेंट इसमें नहीं होता, वो रेशो स्केल में होता है बस। एंड एब्सोल्यूट जीरो भी सिर्फ रेशो स्केल में ही होता है। ऑर्डर ऑफ द डेटा इज मीनिंगफुल, यस, नंबर्स ही होते हैं। ठीक है, अभी तक कोई डाउट? नहीं। नहीं। ठीक है, एंड मरियम? ओके। तो ऑर्डिनल डेटा का बार चार्ट में ऑर्डर प्रिजर्व करना होता है। हाँ, ये तो हमने एक पॉइंट पढ़ा था, ये एक पॉइंट होता है, क्योंकि ऑर्डिनल डेटा जो है वो इस टाइप का होता है, जैसे कैटेगरिकल होता है, बट कोई क्लास 7 में है तो कोई क्लास 12th में है, इस तरह का ऑर्डर होता है, जबकि ये कैटेगोरिकल डेटा है बट इसमें ऑर्डर है। देन कोवेरियंस कैन बी कंप्यूटेड। हाँ, और ये देखो, मोड इज नॉट डिफाइंड फॉर ऑर्डिनल डेटा। ऐसा तो नहीं है, क्योंकि अगर कुछ डेटा है मेरे पास कि किसी के फेवरेट कार्टून्स, किसी का डोरेमोन, किसी का शिनचैन, तो वो मैं काउंट कर सकती हूँ कि डोरेमोन कितनों का है एंड शिनचैन कितने का है, राइट। देन मीन कैन नॉट बी कैलकुलेटेड बिकॉज मीन न्यूमेरिकल वैल्यूज का निकलता है। फॉर्मूला बता सकता है कोई मीन का? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, नो नो, xi प्लस x2, वो सारे बाय टोटल नंबर ऑफ हाँ, ऑब्जर्वेशंस। सम अपॉन टोटल। या हाँ। देन ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी अगर आप पढ़ो तो बहुत इजी है। इसमें दिया हुआ है, अगर मीन इन सारी ऑब्जर्वेशंस का
2a 10, 3a 50 एंड 40, ये 30 है। हमारे पास 5 ऑब्जर्वेशंस हैं, तो हमें मीडियन निकालना है। तो सिंपली हम लोग इसको कंप्यूट कर देंगे, इक्वेट कर देंगे। 2a प्लस 10, मतलब ऊपर सम निकालेंगे इन सबका सम होगा ऊपर, एंड नीचे होगा 5, बिकॉज ये है टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज, और वो हमें वैल्यू गिवन है विच इज द मीन 30। तो इस तरह से नॉर्मल अलजेब्रा लगा के यहाँ पे 2a प्लस 3a 5a हो जाएगा, एंड बाकी सारे ऐड करके 100। तो a की वैल्यू आ जाएगी, a की वैल्यू आके हम इन सब में 2a 2 into 10 कर देंगे तो 20 आएगा, 3 into 10 कर देंगे तो 30 आएगा। इन दोनों का हो गया। अब मीडियन के लिए हमें असेंडिंग ऑर्डर में लगाना होता है, तो हम लोग वैसे लगा लेंगे, एंड और नंबर ऑफ वैल्यूज हैं तो सामने से ही मीडियन दिख जाएगा। ठीक है, एनी डाउट्स? No. ओके, अर्पिता एनी डाउट? ना नो। ठीक है, नाउ दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें हमसे पूछा है ई ऑफ 2x+1 का होल स्क्वायर। तो ये कुछ भी फंक्शन दे सकता है, ये वही है कि एक ई ऑफ वाई करना है हमें, और हमें वाई इज एज अ फंक्शन ऑफ एक्स दिया हुआ है। वाई हमें दिया हुआ है 2x² + 1। तो ये सिंपल है कि ये जो x है ऊपर, यहाँ पे हमें x गिवन है, तो पहले हम इसको बनाएंगे 2x। 2x बना के यहाँ पे -2 आ जाएगा। इन वैल्यूज पे अभी हम फोकस कर रहे हैं। -2, यहाँ पे 0 × 2 तो कुछ नहीं होता, तो 0, 1 × 2 2 होता है। साइड में लिख देती हूँ। 2x बनाएंगे पहले हम लोग, -2, 0 एंड 2। इसके बाद 2x में 1 ऐड कर लेते हैं, क्योंकि हमें ये इक्वेशन लानी है ना। सो 2x+1 कर दूंगी मैं। -2 + 1 -1, 0 + 1 1, 2 + 1 3। और अब इसका हम स्क्वायर कर देंगे नीचे वाले में, तो स्क्वायर करके ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 रहेगा, एंड ये 9 हो जाएगा। तो ये हमारी वैल्यूज हैं। अब ई ऑफ एक्स इज, जो भी हमारे पास एक्स की वैल्यू है, ये वाली, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है प्रोबेबिलिटी से। तो एक्स की वैल्यू इनटू प्रोबेबिलिटी, उस स्पेसिफिक की प्रोबेबिलिटी है ना, ये पता है ना। दिस इनटू प्रोबेबिलिटी एंड दिस, और इन सब का सम लेंगे हम। ठीक है, इसको बोलते हैं एक्सपेक्टेशन। तो देखो, मैंने यहाँ पे 1 1 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है 1/6 से, प्लस इस वाले 1 को 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया है, एंड ये वाला 9, ये 9 1/3 से मल्टीप्लाई कर दिया। मतलब हर एक उसकी खुद की प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई होगा। उसका सम निकाला एंड 3.66 आया, एंड आंसर इज करेक्ट, क्योंकि हमारे पास पूरी रेंज जो है उसके बीच में ही आता है 3.66। ठीक है, इसमें कोई डाउट? नो मैम। ओके ग्रेट। एंड अर्पिता सनी, एनी डाउट? नो। ओके, चलो अच्छा है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। बीएस डिग्री, राइट। तो फर्स्ट सेमेस्टर ऑफ बीएस डिग्री, तो एक स्टूडेंट ने 4 सब्जेक्ट्स लिए हैं। सो मेक इट अ पॉइंट n = 4। अब इसमें ग्रेड्स होते हैं, आपको पता ही होगा, एस ग्रेड, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, डी ग्रेड, ई ग्रेड एंड फेल। ठीक है, तो ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6 एंड 7 है ग्रेड्स। अब स्टूडेंट जो है, मिनिमम ई ग्रेड लाना चाहिए, मिनिमम फॉर गेटिंग प्रोमोटेड। मिनिमम ई लाएगा, लेकिन उसके पास वेज कितने हैं प्रमोट होने के? या तो ई ले आएगा या डी, मतलब कि या तो ई या तो डी ले आएगा, या तो सी या तो बी या तो ए या एस। तो ये टोटल कितने हो गए वेज टू गेट प्रोमोटेड?
कितने हो गए? आपकी आवाज नहीं आ रही 6. सर। हाँ, तो 6 वेज हो गए। बट ये है एक सब्जेक्ट के लिए, उसको 4 सब्जेक्ट्स में पास होना है, इसलिए 6 की पावर 4 होगा। ये तो नॉर्मल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के बेसिस पे है। एंड इसका आंसर आ जाएगा 1296। ठीक है, तो देखो ये 1 2 3 4 5 एंड 6 है। एक सब्जेक्ट में 6 लाएगा तो पास होगा। तो यहाँ एक सब्जेक्ट, दूसरा सब्जेक्ट, तीसरा एंड चौथा, सब में 6 आने चाहिए। 1296। ठीक है, क्लियर? Yes, ma'am. ओके, थैंक यू। चलो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें मीन दिया है एंड स्टैंडर्ड डिविएशन दी है। ठीक है, 8 ऑब्जर्वेशंस की। अब 8 ऑब्जर्वेशंस, देखो, हाँ, तो 8 ऑब्जर्वेशंस है। ठीक है, सो n = 8, x बार इज 15, मतलब कि मीन। और स्टैंडर्ड डिविएशन का कुछ यूज नहीं है इसमें। इसमें बता रहे हैं कि एक ऑब्जर्वेशन है जो 13 होनी चाहिए, 13 वैल्यू होनी चाहिए उसकी, बट वो गलती से 10 लिख ली गई है। अब वो पूछ रहे हैं कि 13 जो है वो 10 लिख ली गई है, तो व्हाट इज द मीन ऑफ ओरिजिनल डेटा सेट, मतलब कि अगर 10 की जगह हम 13 लें तो क्या मीन आएगा। तो ये बहुत इजी है, हम लोग सम निकालेंगे। आपको पता ही होगा मीन का फॉर्मूला होता है सम अपॉन एन। तो सम हो जाएगा मीन इंटू एन, विच इज 15 × 8। ये है रॉन्ग सम। ठीक है, तो 15 × 8 मतलब कि 120। अब हमें सम करेक्टेड निकालना है, तो वो ऐसे निकलेगा कि 120 में से पहले हम 10 को हटा देंगे, उसके बाद 10 की जगह हमें 13 चाहिए, तो 13 ऐड कर देंगे। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 123। दिस इज द करेक्ट सम, दिस इज द न्यू सम। तो उसके बाद हम लोग इस सम के अकॉर्डिंग मीन निकालेंगे। तो मीन इज सम अपॉन द टोटल, सम अपॉन एन। तो 123/8 अगर हम करते हैं, ये देखो, 15.375, 15.37 to 37 लिख सकते हैं, एंड ये हमारी रेंज के बीच में आता है, तो मतलब ये करेक्ट है। ठीक है, एनी डाउट्स? No. ओके, अगर क्लियर हुआ करे तो टिक मार्क का ऑप्शन होता है एक, वो दे दिया करो। ठीक है, कहाँ पे? आप लैपटॉप पे कर रहे हो या फोन पे? लैपटॉप. हाँ, तो नीचे ही आपको दिख रहा होगा रिएक्शंस नाम का कुछ। हम्म. हाँ, उसमें टिक मार्क है, वो देके देखो एक बार। ठीक नहीं है. थम्स अप और हाँ, थम्स अप, हार्ट और थम्स अप कुछ. दे दो। सो ओके. क्लियर हो जाए तो आप लोग थम्स अप दे देना। तो ये मैंने सोल्यूशन लिखा हुआ है, मैं पीडीएफ कंप्रेस करके भेज दूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कंपनी में 120 एम्प्लॉयज हैं। हाँ, सो टोटल 120 है, और वो 3 डिपार्टमेंट्स में डिवाइडेड है। 36 मार्केटिंग के हैं, 40 हैं फाइनेंस के, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, एंड 44 हैं आईटी के, आईटी। अब एक पर्सन सिलेक्ट होता है रैंडमली प्रेजेंटेशन के लिए। तो हमें ये देखना है कि एक्स है नंबर ऑफ एम्प्लॉयज विच बिलोंग टू द पर्टिकुलर डिपार्टमेंट।
तो इसका फर्स्ट सब पार्ट करते हैं। करेक्ट पीएमएफ फाइंड करना है इसका। पीएमएफ प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। तो इसका करेक्ट पीएमएफ ऐसे होगा, ऊपर एक्स की वैल्यूज लिख लो 36, 40 एंड 44, और नीचे होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स का मतलब है 36/120, 40/120 एंड 44/120। इसको अगर हम कट वगैरह करते हैं तो ये 3/10 आएगा, ये 1/3 एंड ये 11/30। इस हिसाब से ये वाला हमारा मोस्ट करेक्ट पीएमएफ है, तो ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लिखा है, तो वो मैंने क्या बताया था, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इज एक्स की वैल्यू 36 इनटू इट्स प्रोबेबिलिटी 3/10 प्लस, यहाँ पे भी सेम करेंगे 40 इंटू 1/3 प्लस 44 इंटू 11/30। ठीक है, ऐसे ये पूरा मल्टीप्लाई करके जो भी वैल्यू आएगी। हाँ सनी, कोई डाउट है क्या? कितने क्वेश्चन बचे हैं? आवाज नहीं आ रही, चैट में लिख दो। 10 मिनट्स में हमारा हो जाएगा पीवाईक्यू सारा। अच्छा ओके लिखना था, ओके ओके, आई थॉट कोई डाउट है। ठीक है, तो ये देखो, ई ऑफ एक्स इज एन इंटू पी, या एक्स इंटू पी बोल सकते हैं, जो भी एक्स की वैल्यू है, इंटू इट्स स्पेसिफिक प्रोबेबिलिटी। तो देखो हमारा भी आंसर 40.26 रेंज के बीच में है, तो करेक्ट है। ये लोग ऐसे रेंज देते हैं ताकि किसी का अगर डेसिमल का कोई इशू हो तो उसका गलत ना हो जाए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे अ कंपनी प्रोड्यूस स्टील रॉड्स विद लेंथ बिटवीन बिटवीन मतलब कि इनका जो रेंज है वो है 40 to 20, आई मीन 20 to 40, और मतलब कि इंटरवल का साइज हमारा 20 है, 40 - 20, ये है हमारा इंटरवल साइज। इसको a इक्वल्स टू 20 और b इक्वल्स टू 40 लेकर ऐसे करेंगे ना? हाँ 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 बिल्कुल। हाँ वीक 11, वीक 12 का वो A = 20, B = 40। हाँ ऐसे भी कर सकते हैं, बट मेरे पास एक और भी मेथड है। जैसे देखो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने बताया था ना पहले, एक क्वेश्चन था उसमें कि x < k, हमें ये दिया हुआ है कि p(x < k) is p(x> k। तो मतलब कि अगर ये मैंने एक स्लाइड लिया, इसमें p है, ये k है एक, यहाँ पे < k है, यहाँ पे ग्रेटर देन है, तो ये पूरा ऐड करके तो 1 ही बनेगा ना, मतलब टोटल ही बनेगा ये पूरा ऐड करके। इस यस। हिसाब से दोनों की प्रोबेबिलिटी 0.5 0.5 होंगी। तो ऐसे अगर करके देखते हैं, हमारे पास लेंथ है 20 एंड 40, तो उन दोनों का हमें बस, ये एक सिंपल मेथड है, उन दोनों का मीडियन लेंगे हम, क्योंकि 0.5 है, तो सेंट्रल वैल्यू x इज द सेंट्रल वैल्यू। ठीक है, मीडियन या मीन कुछ भी ले सकते हो। सो ये आ जाएगा 30, 20 + 40/2, 40। तो ये है 30 हमारा मीडियन, क्योंकि एक ये जो k है ये हमारा सेंट्रल वैल्यू है, जिसके इधर और जिसके इधर दोनों 0.5 0.5 प्रोबेबिलिटीज हैं। ठीक है, क्लियर? कोई डाउट है इसमें? ओके नो। ओके, ठीक है, तो ये हो गया। अब आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है।
what is the probability that randomly selected steel rod more than 25 सेंटीमीटर की लेंथ होगी। तो हमारे पास टोटल इंटरवल क्या है 40 से 20 का, जो कि है 20 हमारा पूरा इंटरवल है जितना हो सकता है लेंथ। पर हमें चाहिए 25, मतलब ये जो लोअर वैल्यू है ए वो 20 से 25 हो जाएगी, 20 से 25 हो जाएगी। तो अब हमारे पास इंटरवल रहेगा 15 रॉड्स हो सकती हैं या 15 लेंथ्स हम ले सकते हैं बस। प्रोबेबिलिटी ऑफ लेंथ मोर देन 25, तो ये होगा 15, हमें 15 चाहिए इंटरवल रिक्वायर्ड अपॉन टोटल लेंथ। तो 15 अपॉन 20, इसका आंसर होगा 3/4, 3/4। हमें चाहिए लेंथ 25 से ज्यादा, बट टोटल अवेलेबल हमारे पास 40 से 20 है, मतलब 20 है बट हमें चाहिए 25 से ज्यादा। तो यहाँ पे बस 15 है ऐसी रॉड्स जिनकी 25 से ज्यादा लेंथ है, और टोटल रॉड्स जिनकी 20 से ज्यादा की लेंथ है, 20 से 40 के बीच में, वो हमारे पास 20 है। ठीक है, ऐसे हमने प्रोबेबिलिटी निकाला कि रिक्वायर्ड अपॉन टोटल अवेलेबल 15 अपॉन 20, एंड ये हो गया 3/4। ठीक है, वो हाँ, तो अब आई थिंक ओवर है। एंड एनी अदर डाउट्स? अनम्यूट कर सकते हो अब आप लोग। नो नो। नो डाउट्स, मतलब सब क्लियर हुआ। हाँ, यस मैम। सही चल रहा है तो। ठीक है, अमेजिंग। तो स्टैट्स इस बार इजी होगा थोड़ा, हिस्ट्री से तो, सो डोंट वरी। एंड अगर सारे फॉर्मूला, मैं फॉर्मूला शीट बना के भेज दूंगी अभी। नो डाउट्स, ओके। तो मैं फॉर्मूला शीट बनाने की कोशिश करती हूँ एंड भेज दूंगी। अपने स्टैट्स के एग्जाम से पहले वो देख लेना। एंड सीटी भी प्रिपेयर्ड है आप लोग? नहीं, नहीं? कुछ प्रिपेयर नहीं है, सब में नर्वसनेस है पिक। अच्छा ऐसा करो, 4 सब्जेक्ट्स मत दो, 4 सब्जेक्ट्स लिए ना आई आपने। हैव ओनली 3। ओके, आई हैव ओनली 3। सो यू कैन डू वन थिंग कि अगर तुम चाहो तो सीटी को स्किप कर सकते हो, ओनली एंड टर्म, क्योंकि इतना ज्यादा नहीं, प्रेशर। फिर नेक्स्ट टर्म में 4 लेना पड़ेगा तो वो फिर डिफिकल्ट हो जाएगा। अगर सीटी स्किप होता है, ये देखो, अभी तुम्हारे 2 हो जाएंगे, मतलब कि हाँ, स्टैट्स स्टैट्स एंड और इंग्लिश। इंग्लिश। नेक्स्ट में 3 ले लेना, एंड लास्ट में भी 3 ले लेना। 3 + 3 + 2 8 टोटल हो जाएगा, तो 3 ही टर्म्स होंगी। एक्चुअली जो थर्ड टर्म में होगा वो मेरा मैथ्स 2 और स्टैट्स 2 रहेगा। वो ऑलरेडी लाइक विल बी अ लिटिल डिफिकल्ट, और उसमें फिर और कुछ ऐड करूंगी तो इंग्लिश 2 दिक्कत ले आ लेना। जाएगी। सेकंड में क्योंकि हाँ, सेकंड में एक्चुअली सीटी रिपीट नहीं करना पड़ेगा आपको, आप अकेला एंड टर्म दे सकते हो उसके लिए, सो यू डोंट हैव टू स्टडी अगेन। अच्छा, क्विज 1 और क्विज 2 नहीं देना पड़ेगा। हाँ, सीधा एंड टर्म, वो 1000 रुपीज होता है बस, अगर एंड टर्म स्किप किया हो। मैम बट अच्छा, उसके साथ तो मैथ्स भी है ना। किसके साथ? अ, जैसे 2 एडमिट कार्ड हैं तो एक में मैथ्स और सीटी और एक में सीटी एंड इंग्लिश, मैं वो स्टैट्स और इंग्लिश है, तो हाँ सीटी हाँ, हो ही नहीं सकता। हो सकता है, मैम मतलब कैसे? अगर नहीं जाओगे तो फिर तुम्हें बस आफ्टरनून एएन के लिए जाना पड़ेगा, एंड ये स्किप्ड माना जाएगा, इसको फिर प्री टेस्ट अलाउड होगा। एंड मैथ्स? मैथ्स आई थिंक अर्पिता ने तो नहीं लिया, आपने लिया हुआ मैथ्स? नहीं मैंने नहीं लिया। हाँ, तो मरियम ने लिया है शायद मैथ्स। यस मैम। कौन से सब्जेक्ट्स हैं आपके? मैम चारों ही है मेरे पास। अच्छा अच्छा,
तो एक्चुअली मैं अपनी बता देती हूँ, मैंने 4 सब्जेक्ट्स लिए थे। तो उसमें से मेरे को भी फर्स्ट टर्म में मैथ्स 1 स्किप करना पड़ा, और फिर मैं उसको नेक्स्ट टर्म में दूंगी। एंड मैम अब इसके साथ तो मैथ्स के साथ तो सीटी भी है ना, तो कैसे स्किप कर सकते हैं, मतलब दोनों ही स्किप हो जाएंगे फिर तो? नहीं नहीं नहीं, अगर मै देखो, सुबह वाला जो है वो मैथ्स 1 और सीटी के लिए है। अगर मैथ्स 1 नहीं देते तो सीटी दे सकते हो, इट्स इजी। और 9 o'clock से लेके 10:30 तक दे सकते हो सीटी, और फिर वहां से निकल लो। ओके, सो मैथ्स नहीं करें? नहीं मतलब, अगर प्रॉब्लम है या अगर प्रिपरेशन नहीं है तो मत करो, क्योंकि जी। अगर थोड़े बहुत क्वेश्चन कर दिए और पास हो गए तो फिर इम्प्रूवमेंट एग्जाम देना पड़ता है, जो कि 8,000 है, आई थिंक यही है। अगर पास जी। होते हैं तो इम्प्रूवमेंट देना पड़ता है, अगर फेल होते हैं इसमें, मतलब अगर एंड टर्म में एब्सेंट लगता है, यस। तो फिर रीटेस्ट दे सकते हैं। बहुत सारे लोग एंड टर्म में आके ऐसा करते हैं। ओके मेरे मैम, फ्रेंड ने एंड पूरा, नेक्स्ट टर्म में हम ये मैथ्स अप्लाई कर सकते हैं? हाँ हाँ हाँ, नेक्स्ट टर्म में ओनली एंड टर्म अगर देना है तो कर लो, या अगर पूरा रिपीट करना है, फुल रिपीट के 4,000, जैसे पहले ओके। किया था।